scientific session, I would like to call upon the following delegates on the stage. First of all, the chairperson for the first scientific session, Dr. Shriman Sir. Sir, please come on stage. Associate Professor, Panchkarma Department, Himalaya Ayurvedic Medical College and Hospital. Secondly, I would like to call upon our keynote speaker, Dr. Malini Srivastava ma'am, and please come on stage. And thirdly, I would like to call upon the reporter for this scientific session, Dr. Ranjana, Assistant Professor, Shalakya Department, Himalaya Ayurvedic Medical College and Hospital. Now, I would request Shriman Sir to please welcome ma'am by presenting her the bouquet. Thank you very much, sir. Before starting this scientific session, I would like to give a brief introduction about Dr. Malini Srivastava ma'am. She is presently the consultant psychologist, primarily in neuroscience and pediatrics, associate professor and head department of clinical psychology, Himalayan Institute of Medical College. Her qualifications are doctorate in psychology on the topic emotional competence and self-concept among adolescents as related to perceived perception and environment from Kanpur University, awarded by HNB University, Srinagar, Garhwal. Postgraduate in psychology with specialization in clinical psychology from Kanpur University. Postgraduate diploma in preventive and promotive healthcare from Apollo Hospital Education and Research Foundation. She has a professional experience of total 18 years in clinical areas that includes diagnostic assessment and psychotherapies, behavior therapies and integrated therapy, teaching, training and research in the field of yoga psychology, psychology and clinical psychology for undergraduate, postgraduate and PhD students belonging to the medical and paramedical students. Now I will request ma'am to please come here and share her knowledge and experience with all of us. Thank you, Dr. Mishra. Such a nice introduction. Good morning to everyone. Respected chairperson and Dr. Ranjana. So I hope, like other students, the faculty is also here. And protocoling few of the slides I'm just presenting here, but my because this is a workshop, it's not a lecture or conference paper. So I would prefer to. And because the time is also limited, so my usual practice is I just ask the questions and make it more interactive. But right now, because of the time, I would request you, especially the students, to please keep some points in your attention for which we can discuss during interaction session. Right? So because this workshop, I was asked to talk about mental health. Mental health, of course, as per the definition, we all know that is a kind of balance where we can perform and express our behavior in an adjusted way in the society. This is a simple definition, but it appears simple, but in practical it is not simple. क्या है, कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं? That is the challenge for us, and all the students who are sitting here, for them it is very important to understand that mental health is mind is not a separate component. I have already proposed in 2012
and pursuing that medical colleges should have psychology, not the clinical psychology, the psychology in first year medical curriculum when they are being taught biochemistry, physiology and anatomy. Simultaneously they need to be, learn about mind. It's an integral part. So gradually we'll be learning what exactly it is, what is our experience in biochemistry and how and how we can bring in our day-to-day practice. Can keep it there. So anyways, हम लोगों को सभी को पता है कि सर विलियम ऑस्लर ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है. एंड इफ बिकॉज टुडे वी हैव इग्नोर्ड, वी डोंट इवन रिमेंबर हिम, वी डोंट इवन नो द idea of medicine. What he said is the young physicians uses 10 drugs to treat one conditions, and nowadays not even 10, more than 10 also. Not only 10 drugs, nowadays the practices for each part of us is being treated by one specialist, which is true in certain sense. I'm not saying that, but at the same time, in that specialty also we need to have an overall understanding. We should understand that human being is one. So integration of body first and then body and mind need to be there. What Dr. Swami Ramu, the founder of the Our Institute, he was a scientist, he was an homeopathy doctor. He said that whole of the body is in the mind, but whole of the mind is not in the body, which is true. Right now we are sitting here, many of us must be thinking many things outside of this classroom, right? If we want, we can think about America, we want to can think about war or love or anything, right? So whole of the mind is not in the body. So it's a challenge how to make an integration. So prospects of mental illness, I am starting because normally when we talk about mental health, our mind goes, we are stigmatic about this so-called illness, bimari, mansik rog, and this is why we are stigmatic about it. But this is a pure medical condition, pathological condition, only very limited to mental health section. I am skipping this because we know that what is the definition, but yes, I would like to highlight on this biological and psychological understanding about mental illness and mental health. You can just see if the cursor is moving, otherwise wherever I want to highlight. So generally there are different names: mental disorder, psychological disorder, abnormal psychology, chronic problem, behavioral problem, insanity. I have highlighted, bold and put underline because above all, underneath, whether we use this particular term or not, but still insanity is underneath in our mind. When we talk about mental health, we definitely have something unconscious underneath, which the term is insanity. कहते हैं normally हम लोग कि भाई पागल थोड़ी ना है, crazy थोड़ी ना है, हम जाएंगे psychologist के पास, psychiatrist के पास. Till the day, believe me, even the medical professionals in my university, my colleagues also, they have hesitation and reservation to approach us at the time of need. So we have to understand, it is all these terms are there, but insanity is not there, associated with it. Now, we need to understand why, because the conventional way to deal with mental illness has been medicine only. So we have come, at this age, for anything we are depending on medicine.
थोड़ा सा दर्द हुआ, दवाई ले लो ठीक हो जाएगा, कॉम्बिफ्लेम खा लो ठीक हो जाएगा, पैरासीटामोल ले लो ठीक हो जाएगा। उस दर्द को जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि कोई वार्निंग है। The pain itself is not an illness. Remind you, I'm running a pain clinic since last 3 years. Pain itself is not an illness or a disease, although it has been put on the disease. Thank you. Pain basically is an warning to ask you to pay attention to the body, just to stay where you are. What you are doing, just have a stop and just look at yourself. Where is the problem? The problem is somewhere else, and it is going to come in a bigger way. Right now, pain is just an warning sign की तरह से लेना है, but हम लोग उसको कैसे में ले आते हैं? So दूसरा तरीका होता है, हो सकता है psychological counseling, for which we are segmenting, and then psychoanalysis, because I am just from that background, so I'm just talking. These two things, the later two things are psychotherapies and behavioral sciences and psychoanalysis are purely basically based on the mind content, the thought process. How it is linked, medicine works only with the body. Psychotherapies and behavioral therapies deals with the behavior, and psychoanalysis deals with the deeper impressions of the mind, which we have acquired since childhood, early childhood. It may not be pathological, but it has a very important role in our personality formation and in our way of dealing with situation and adjusting in the world. So, all three methods, if we can bring together, we have to look like this: body and mind. Body and mind, the interaction of body and mind brings the behavior, and any deviation in the behavior is called disturbed mental health, not mental illness. Disturbed mental health or altered mental health. जहाँ पे भी बॉडी और माइंड का इंटीग्रेशन नहीं होगा, वहाँ पे हम बिहेवियर की प्रॉब्लम होगी. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर happy, but if you are asked to sit, not to express yourself, what will you feel? You'll feel restless. Simultaneously, if you are very sad for some reason and you are forced to go and attend some function where everyone is happy, you will be restless, right? So mind and body is not, your body is there at a function but mind is not. There is no integration, and so it will reflect in the behavior also. आपको रेस्टलेस दिखेगा, चेहरे पे उदासी आएगी, परेशान होंगे लोग, इरिटेट हो सकते हैं, you may even express the anger also. So mind and body integration is very important in order to bring a balance in behavior and to adjust in the society. Now we have to understand the integration of what, how this behavior occurs. For this we need to see this model. It is a unique model defined by the university and by Patanjali itself. And what Patanjali says, इसमें से कुछ बच्चों ने, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आइडिया होगा, आप लोगों ने फ्रॉइड को पढ़ा होगा तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ा होगा, बट लॉन्ग बिफोर फ्रॉइड्स अंडरस्टैंडिंग, इट वॉज ऑलरेडी देयर इन Patanjali's literature. And let you know कि फ्रॉइड ने कुछ नई बात नहीं कही थी, अलग भी नहीं थी, लेकिन उनको भी अल्टीमेटली, बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ नेचर, नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड. जो ब्लड हमारा यहाँ है वो अमेरिकन को भी होता है, ऐसा नहीं है कि किसी का अलग होता है. सो करंट एरा में अगर फ्रॉइड ने उसको ये इंसाइट डेवलप की बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, वो ऑलरेडी थी. देयर इज नो डिफरेंस इन इट, राइट? एंड इट हैज टू बी एक्सेप्टेड. What he said and what Patanjali Yoga Darshan says is, we have three different self: mortal self, which includes body, senses, and this body and senses are connected through conscious mind, through breath. Because if we don't pay attention on breath, our mind will not be under control. It is a tested and proven practice. In my clinical practice, we have realized
you can notice in yourself day to day basis पे कि जब तक आपका ब्रेथ अगर आपका बैलेंस नहीं है, आप देखिए जब भी कभी एक हम लोग की प्रोवर्ब्स होती है, कहा जाता है गुस्सा ज्यादा आए तो आप 10 काउंट्स कर लो, ठंडा पानी पी लो. That means you are just asked to sit down or settle down. और जब आप काउंट करने लगते हैं या पानी पीते हैं तो आपका ब्रेथ ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे, राइट. एंड आज के टाइम पे इन चीजों को प्रूव किया गया है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स. इट्स कॉल्ड पावर फीडबैक इंस्ट्रूमेंट. आई एम गोइंग टू शो यू. जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक हार्ट रेट, स्वेट, आपका ब्लड प्रेशर, मसल टेंशन लेवल, all these things can be tested. and अभी अगर सबको लगा के देखा जाए तो सबका एक अलग फ्लक्चुएशन होगा. there is nothing abnormality in that. सबका वेरी करेगा because like a wave form. but if we pay attention on breath we can have a balance. लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो environmental situation की वजह से, thought में disturbances की वजह से there will be a difference in those wave. there will be a difference in the pattern of those electrophysiological system. So what happens if constant disturbance is there, that changes our health and definitely the mental health also. जैसे for example हम देखते हैं कि थायराइड बहुत कॉमन डिजीज मानी जाती है, लाइफस्टाइल डिजीज मानी जाती है. थायराइड itself is not a disease. It's a malfunction of either increase or decrease in the thyroid hormone. Because of that, the person gets irritated, anger, disturbed sleep, and all those things are there. Many symptoms are there. But these behavior जो उसको because of exceed thyroid हो रहा है, society में उसको irritated and angry person के रूप में लिया जा रहा है. This gives a label and consequence क्या होता है, उस व्यक्ति से जब लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं, रिएक्शन करने लगते हैं, तो वो उसमें थॉट में इम्बैलेंस आता है, तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब लगती है. So what I'm trying to say is, if we can pay attention on breath, we can have a definite control over electrophysiological system, which brings a balance between body and mind and helps us to maintain and this so-called mental hygiene. This is a need for the hour. How it can be? There are some evidences which I am just going to share with you all. I will skip this. Holistic. Holistic does not mean just for the integration. We just need to understand कि holistic का मतलब purity भी नहीं है, और holistic as a whole भी अगर हम देखते हैं तो whole of what? So there are two dimensions of it. One is if a person is sick, needs a surgery, एलोपैथिक वे में सर्जरी हो गई, बट फर्दर उसको कोई भी मेडिसिन अगर देनी है तो दैट कैन बी सप्लीमेंटेड ईदर थ्रू होम्योपैथी और आयुर्वेद, राइट. साथ में सम योगिक एक्सरसाइजेस कैन बी डन फॉर रिजुविनेशन एंड फॉर बेटर हेल्थ. सो दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग अबाउट होलिस्टिक ट्रीटमेंट. But at the same time, the prime understanding and the main dimensions of holistic health is to consider mind, body, breath together. If any client is coming to us or any of us are disturbed by anything, either physical ailment or mental ailment or general disturbances there, we are to consider, हमको अपने आप को चेक करना चाहिए. बहुत सिंपल है कि हमारी सांस कैसी है. If it is disturbed, believe me, today I am very confident. When I started my practice, it was just a theory. Today I am very confident, and I will show you. Immediately it will help. Just focus on a nostril breathing. Start counting. You will, within minutes, you will feel better. You will have a different set of mind. The mind which is feeling pain, hopelessness, immediately will have some kind of hope. And through that you can again start practicing, more and go for better health. How it works? This slide I have especially brought for because the students are from Ayurvedic side and they all are aware about these 5 sheets of us. But these 5 sheets,
have a definite effect on our mental health. We need not to be mentally ill, but in general day-to-day way, if 40 people or 50 people are sitting here, each one is having a different, diet, different pattern of sleep, different pattern of environment. Based on that, these sheets are affected. So we are to consider what we are eating, where we are living, how we are eating, how we are spending the day. Each activity is affecting either of the sheets present here. So in holistic therapy, which is my the advanced therapeutic model which I am bringing out, efficacy publications are there, has been well adopted in medical community. It's called holistic therapy or integrated psychotherapy. We have given the official level. The first level is based on the model I have shown just now, the 5 levels of our being. So the first level is called physical health, and at physical health we need to work with diet, nutrition, exercises. It can be yogic techniques, conscious exercise. Conscious exercise means we ask the person, or we can ask ourselves also if we are to teach, we are to work with our mental health. What is in my surrounding? No matter how much tense I am, the thoughts are disturbing. Just give yourself time for a minute or few seconds and just start looking in surroundings. How many fans are there? How many lights are there? What color of curtains are there? Like that. So it's called conscious exercise. There are many techniques, but just an example I tell. And 31 and 60 points of meditation in the body, right from here, pituitary gland, till throughout all the joints. We take the focus our mental attention at that particular point. And this helps to be aware about the body, and it helps us to disconnect from that particular negative environment or negative thought which is disturbing us. It's very effective technique. And then creative use of emotions means if I'm disturbed, I will not talk to anybody. I will go to with my hobbies or passions. It can be in any direction. It can be in any direction. There is no limit of it. But something which helps me to feel better, that's called creative use of emotion. Then wisdom sheet. Wisdom sheet means self-study. Then Dhyan yoga and yogic counseling. Yogic counseling, of course, is done through the experts. So we can go to the expert, and as a mentor, we can talk to them. We can ask about the conflict and the possible solution. We can discuss. Self-study, we all know. Dhyan yoga is a sort of thing, again a kind of self-study also, but in that, basically we ask them to read some anecdotes, some literature which helps us to understand the mind, understand the world, understand the problems. Then bliss sheet. In the therapeutic model, we have included the bliss sheet also. One of the techniques is working in blissful awareness. It's very difficult, but it is possible. But it happens through breath only. Whenever we are disturbed, simple thing, anything happens in life, just start focusing on breath and counting the breath. Believe me, it will help. It will help you to think better. It will help you to think and relate with the situation. And then stillness is very important. 24-hour time in a day is there with us. At least 5 minutes if we sit just without moving. Just practice and see the effect. I cannot prove it. See, these are the techniques which need to be practiced. I practice myself. I made my patients and clients to practice, and then I am very confident today that it helps. So my request would you to be, if you can't do anything other than like whatever I have said, you can't work with your diet, you can't do exercise, you can't pay attention on breath, you just sit wherever you are for 5 minutes. Don't move. You will see the difference, and it's a challenge.
I can give you a sample, but just sitting still 5 minutes without movement itself is a good therapy, big solution for any of the problem, in life. I'm skipping this. Coming to this stress management biofeedback I mentioned. These are the machines available in the market. It can, because students are there, you people may research and see and prove yourself that these concepts and techniques are useful. So it's very useful, experiments can be done, good researches can be taken, and these researches can be translated into generalized way also. So it is just not the lab based anymore. आप लोगों ने देखा है कि स्टेप 10,000 स्टेप चलिए, 12,000 स्टेप चलिए, इनपे आपको फीडबैक मिलता है. It's called feedback. I just take 2 movies. So we have worked with patients like depression, anxiety. बहुत छोटा सा डेटा भी हम दे रहे हैं. There are literature available and share with your faculties. You all can go through with those literature available over the Google platform and that thing. All the journals are available. But these are the data. Now, at the last, what I would say, कि COVID के reference से, because I had been asked, I brought this presentation because I was invited yesterday only and I could not ignore Dr. Pachauri sir's order or Adesh Pankaj because he had been as long senior to me and Dr. Neeraj also of course, so I just came. But what I would say, since last year I am running a post-COVID clinic in my hospital. During the COVID, we did work with mental health in the hospital isolation section and general population. Online, we created a group where psychiatrists and mental health workers were there. We trained them in a specific condition of COVID, but we trained them with this model only, the integrated model of mental health. Because even at that time, general health कहिए, time पे कहिए या pandemic के time if we can ask the person to sit still or just to pay attention with the breath, any kind of the person who himself is suffering with COVID or such a pandemic, or the attendant or the caregiver or the person who is living in isolation, ask them to pay attention on the breath. Ask them to sit still. These 2 techniques, if you can follow and introduce with them, definitely it changes the mind. I am having, since last year, the special clinic I am running every Monday, around 500 clients. I myself was not aware that will come to the hospital and report that post-COVID condition पे उनको क्या दिक्कत हो रही है. And during the pandemic time when we were working through online, platform, around 2,500, our group 2,500 clients we interacted. Out of them, 1,500 to 1,800 they responded well only with sitting still and paying attention on the breath. So that is the key to the mental health in general also or in any kind of pandemic. With that, I would just say thanks. These are the 2 quotations for young scholars who are sitting here, because this should be a kind of role sentence for the ideal sentence for them, target sentence for them. Thank you. Thank you very much, ma'am, for such wonderful and knowledgeable session. Now I would request our reporter, Dr. Ranjana, to please come here and do the briefing on the topic. Thank you, ma'am, for giving us this valuable knowledge through your lecture on interdisciplinary approach to meet our mental health. Ma'am started her presentation by showing her gratitude towards first father of medicine, Sir William Osler, and the founder of Himalayan University, Swami Ram. Ma'am described various synonyms and different names for mental problem. Also, she described conventional ways to deal
with mental illness through behavior therapies and psychoanalysis. Ma'am focused on balance of mind and body. Also, she described a proposed model which is given by Himalayan University and based on Patanjali Yoga Darshan. Ma'am emphasized need of hour through 5 levels of sheet: physical, energy, mental, bliss and wisdom, and approach to these through holistic therapies, which includes different types of yoga, pranayam, counseling and deep meditation. Ma'am also given the components of interdisciplinary approach, and she concluded her presentation by focusing on integrated method to deal with mental problems during post-COVID and pandemic. Also, she given the quote on through Swami Ram and Charan. Thank you, ma'am. Thank you giving this beautiful presentation and enhancing our knowledge. Thank you very much, Dr. Anjana. Now we request our chairperson, Dr. Srimant sir, to felicitate ma'am with the memento and shawl. For accepting our invitation and coming here on such a short notice. Thank you very much. One more thing, मैम, आज पहली बार मैं देख रही हूँ कि आपके सेशन के टाइम पर बच्चे इतने शांत हैं और बहुत अच्छे से इन लोगों ने सुना। आपको बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। Now we will start our second scientific session. For the second scientific session, first of all, a very good afternoon to our guest for this session, Dr. Kanchan Joshi sir. For this second scientific session, I would like to call upon the following delegates on the stage. First of all, I would like to call upon our chairperson for this session, Dr. Professor Pushpa Rawal ma'am. Vice Principal of Himalaya Ayurvedic Medical College and HOD of Kaya Chikitsa Department. Secondly, I would like to call upon our keynote speaker, Dr. Kanchan Joshi sir. And thirdly, I would like to call upon our reporter for this second session, Dr. Srimant sir. आप स्टार्ट कराइए। हाँ, Before starting this session, I would like to give the introduction of our keynote speaker. He is the HOD Department of Yoga Sciences, Shri Guru Ram Rai University, Dehradun. Before starting this session, I would like to request our chairperson to please welcome sir with the bouquet. Sir is PhD in Yoga Sciences. He is involved in high-level chapters and research work for
been published by him, and he have experience of many national and international seminars and workshops. Sir has been recognized with special honors from time to time by various institutions and for the work done in the field of yoga. He has been honored with the prestigious awards like Uttarakhand Ratna and Shiromani Uttarakhand. We welcome you, sir, and we thank you, sir, for accepting our invitation. Now I request our keynote speaker, Dr. Kanchan Joshi sir, to please come here and share his knowledge and experience with us. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. It's my pleasure to be the part of this national workshop on the role of Ayurveda and yoga in management of pandemic. Respected madam and all the members who are involved for the success of this seminar or workshop. आज हम टॉपिक पे बात करेंगे योग और आयुर्वेद, जो एक सिक्के के दो पहलू हैं। और क्योंकि जहां तक मैनेजमेंट की बात कहते हैं, क्योंकि आज पेंडेमिक और हेल्थ को लेकर ये सेमिनार और वर्कशॉप होने जा रहे हैं, कई जिन चीजों पर चर्चा होनी थी, इससे पहले मैडम ने बहुत अच्छे से हमारा ह्यूमन सिस्टम अकॉर्डिंग टू योग, जिसमें पंचकोश की बात की मैडम ने। आज जिस पार्ट को हम छूने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ आसन एंड प्राणायाम फॉर ए पॉजिटिव हेल्थ, कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि आसन इसलिए कह रहा हूं, योग की डेफिनेशन सब जानते हैं, योग के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो क्या होना चाहिए। आसन का मतलब ये नहीं कि शरीर को मोड़ लिया, हेड स्टैंड कर लिया, स्ट्रेचिंग कर ली। लोगों के मन में जो अवधारणा है आसनों के बारे में और प्राणायाम के बारे में, और कैसे एक हेल्दी लाइफ में, क्योंकि जहां हम उपनिषद की बात करते हैं, हमारे उपनिषदों में कहा गया है न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। ये जो योग की अग्नि है, जिस योग की बात हमारे ऋषियों ने की है, हमारे मनीषियों ने की है, वो योग क्या है। बिकॉज अवर योगीज आर ग्रेट साइंटिस्ट, दे नो हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी एंड माइंड। इससे पहले लेक्चर में भी जो बात की गई थी वो पूरी बात की गई थी, क्योंकि आज जितनी भी, चाहे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहें या साइकोसोमेटिक डिजीज कहें या सोमेटोसाइटिक डिजीज कहें, सबका जो मेन कोज है वो है आपका बॉडी और माइंड का कोरिलेशन ना होना। बिकॉज योगीज आर द डिजाइनर ऑफ दिस योगिक साइंस। वो जानते थे हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने के लिए जिस साधना पद्धति को उन्होंने रखा, उस साधना पद्धति में, क्योंकि योग के विद्यार्थी भी इसमें है, उसमें हठ योग एक ब्रांच आती है। उस हठ योग के डिफरेंट यौगिक टेक्स्ट हैं और अलग अलग यौगिक टेक्स्ट हैं जो अपनी फिटनेस रखने के लिए, क्योंकि हम जब तक फिट नहीं होंगे, फिट इन द सेंस जब तक हमारी बॉडी में प्राणिक एनर्जी का लेवल प्रॉपर नहीं हो, तब तक हम जीवन के कोई भी चीजों का आनंद नहीं उठा सकते। रोगी, योगी और भोगी तीनों को प्राणिक एनर्जी की जरूरत है, और पूरा योग हाउ टू बैलेंस योर प्राणिक एनर्जी हम आसनों के माध्यम से, जैसे आयुर्वेद के भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पंचकर्मा की बात करते हैं, हमारे योग में षटकर्म का विधान कहा गया है कि जिनमें मेद और कफ की अधिकता है, मेद और श्लेष्मा की अधिकता है, उनको षटकर्म का विधान है, जिसमें नेजल क्लीनिंग हम लोग कराते हैं, जत्रुध्रुव रोग जिसमें आयुर्वेद में कहा जाता है। क्योंकि दोनों का उद्देश्य, आयुर्वेद भी कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का परिरक्षण और आतुर के विकार का प्रश्न। तो योगा थेरेपी में भी हम कहते हैं कि अगर आप फिटनेस के लिए, योगा फॉर फिटनेस, अगर आप फिट है तो योग करिए और आप फिट रहेंगे। अगर आप फिट नहीं है तो आप मैनेज करेंगे डिजीज कि आप कैसे फिट रह सकते हैं। तो इसी पर चर्चा आज हम करेंगे
कि आसनों की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द राइट टेक्निक कि आसन आप करें और आपको बेनिफिट दें। क्योंकि बिकॉज आसन इज वन ऑफ द फेमिलियर एंड कॉमन पार्ट ऑफ योर योगा। हर एक आदमी जानता है और हर एक आदमी करता है आसन, लेकिन फिर भी कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हम आसन कर रहे हैं और इंजरी हो जाती है या आसन हमको प्रॉपर वे में इफेक्ट नहीं डाल पा रहा। तो क्यों नहीं डाल पा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आसनों की डेफिनेशन में जाते हैं। महर्षि पतंजलि जिन्हें कोट किया है आसन को, स्थिर सुखम आसनम, स्टेडी एंड कंफर्ट पोस्चर इज आसन। यानी शरीर की वो स्थिति जिसमें आप स्टेडी हैं, स्थिर हैं और आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, वो आसन है। इसके लिए पूरा आयंगर योगा डेवलप किया, जिसमें डिफरेंट प्रॉप हम यूज करते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं, बैट यूज करते हैं कि कैसे आपको स्थिर रखा जाए। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब आप स्थिर सुखम आसन, आसन करने में हम 3 चीजें करते हैं, 3 मूवमेंट हमारे बॉडी में होते हैं। फर्स्ट कि हम आसन को अडॉप्ट करने के लिए इनिशियल पोजीशन लेते हैं कि उस आसन तक पहुंच जाए। सेकंड वन, टू मेंटेन द पोस्चर, और थर्ड हम उस पोस्चर से फिर से अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं इसमें जो बीच वाला है, जिसमें आप क्या स्थिर हैं और कंफर्ट फील कर रहे हैं, वो आसन है। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रयत्न सतिल्यान समापत्तिभ्याम, यानी आसन क्या है, एक ऐसा प्रयत्न है, एक एफर्ट है आपका जो आपको शिथिल करेगा। अगर आपका आसन आपको शिथिल नहीं करता, यानी रिलैक्स नहीं करता, तो यू आर डूइंग आसना इन ए रॉन्ग मैनर, आप आसन को गलत मैनर में कर रहे हैं। तो आसन की सही टेक्निक, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अगर आप आसन सही कर रहे हैं तो we do asana in the physical level but we get result in mental level। महर्षि पतंजलि इसके बाद कहते हैं ततो दंडान विघातः, मींस ततो दंडा मतलब आफ्टर दैट व्हाट यू गेट, आपकी जो मेंटल वेलिटी है, जिसके इससे पहले लेक्चर में पूरी बात चल रही थी, हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी एंड माइंड। अगर आपके अंदर मेंटल वेलिटी है, मेंटल वेलिटी का मतलब आपको मेंटल स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि आई लाइक दिस, आई डू नॉट लाइक दिस, 2 चीजें हैं। अगर इनमें आप क्या अपने माइंड को फ्लक्चुएट करते हो तो आपका क्या होगा, मेंटल आपके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर आप आसन, क्योंकि डिजीज को क्योर करना हमारे योग में कहा गया है, अगर हम हठ योग का रेफरेंस दें तो प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि प्राणायामे युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। अगर आप राइट टेक्निक से प्राणायाम करते हैं तो आपके जितने रोग हैं उनका क्षय हो जाना चाहिए। तो आज ये टाइम आ गया, ऐसी कॉन्फ्रेंस, ये टाइम है कि हम अपने यौगिक ग्रंथों को, अपनी यौगिक टेक्स्ट को, जो योगियों ने कहा है, उनको प्रैक्टिकल एनालिसिस करें। क्योंकि उनका उद्देश्य था, योग का उद्देश्य है समाधि की प्राप्ति, लेकिन आज समाधि की बात करी जाए तो कोई भी नहीं चाहे, हर एक व्यक्ति पहले फिटनेस की बात कर रहा है। तो जब हम आसन करते हैं तो एक चीज का ध्यान देना है, एक्टिव और अवेयरनेस। अवेयरनेस और कंसंट्रेशन के बिना अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको रिजल्ट नहीं है। आसनों में क्या है, 2 तरह के आसन को अगर हम डिफाइन करें तो आसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायनामिक पोस्चर्स और एक होता है स्टैटिक पोस्चर्स। डायनामिक पोस्चर्स उन्हें कहते हैं कि जिनमें हम मूवमेंट करते हैं, जैसे हमने सूर्य नमस्कार कर लिया, सन सैल्यूटेशन कर लिया, जिनमें या हम कह सकें कि जिनमें हमारी होल्डिंग 10 सेकंड से कम है, वो सब पोस्चर्स डायनामिक पोस्चर्स में आते हैं। तो इनकी फिजियोलॉजी अलग है, क्योंकि हर एक पोस्चर्स में आपको ब्रीदिंग के संग अपने आप को कोऑर्डिनेट करना है। हमारा हर मूवमेंट जब ब्रीदिंग के साथ होगा, कब आपको इनहेल करना है, कब आपको एक्सहेल करना है, तो क्या होगा, आपको आसन जरूर, आपको थेरेपेटिक वे में आपको आसन के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा, आपको आसन में क्या मूवमेंट करना है। आसन जब हम करते हैं तो हम जो हमारा जो मूवमेंट है वो क्या होता है, बहुत स्लो होना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस। एक रिदम आपके आसन में होना चाहिए। रिदम क्यों, जब कोई भी चीज हम रिदम के साथ कर सकते हैं तो हम अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी एफिशिएंसी के संग यूज कर सकते हैं। दूसरा, ब्रीदिंग। जब ब्रीदिंग और बॉडी का मूवमेंट एक संग होगा तो हमारा जो बॉडी माइंड का कोरिलेशन है वो बना रहेगा। तो एक अच्छा हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, डेवलप कर पाएंगे। और जितनी देर हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप करेंगे उतनी देर हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के साथ इन्वॉल्व रहेगा। और जितना आपका ब्रेन बॉडी के संग इन्वॉल्व रहेगा
उतना आप नेगेटिव थॉट से उतने टाइम तक बचेंगे। इसलिए क्या है कि आसनों के बाद प्रैक्टिस करने के बाद हम कहते हैं वी आर फीलिंग गुड। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी और माइंड का कोरिलेशन है, पूरा जो योग है वो क्या है, अभी मैडम ने इससे पहले लेक्चर में किया था कि ब्रीदिंग 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 क्या है, प्राणायाम प्राणायाम क्या है, इज द साइंस टू कंट्रोल योर बॉडी एंड माइंड। क्योंकि ब्रीदिंग क्या है, इज अ ब्रिज बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर आप सबसे पहले स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फटीग है, कुछ भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो आपकी ब्रीदिंग रेट सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। तो हमारी योगियों ने ब्रेथ को पकड़ा, फिर ब्रीदिंग की टेक्निक बताई, किस रेशियो में हम ब्रेथ करेंगे तो कैसे अपने न्यूरॉन्स को, कैसे अपने ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब रिसर्च है हाउ टू कंट्रोल। कि आप आसन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक्टिव बॉडी पार्ट्स, सपोज करो आपने कोई आसन किया, उसमें क्या क्या, ये थोड़ा स्लाइड्स पे भी आ जाते हैं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। क्या हेल्दी इंडिविजुअल किसे कहते हैं? एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल बॉडी जिसकी है, काम एंड क्विट माइंड जिसका है, जिसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, कंट्रोल ओवर इमोशंस जिसका है अंदर है, एक्शन इन रिएक्शन और ब्लिसफुल अवेयरनेस। ये क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है जो हमारे उपनिषदों में वर्णन किया गया है, जो हमारे दर्शनों में वर्णन किया गया है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हमारा उद्देश्य है। ईशावास्य उपनिषद तो कहता है कि व्यक्ति को 100 वर्ष से भी अधिक जीने की कामना रखनी चाहिए। कैसे? एक अच्छे कर्म के साथ, कर्मनिष्ठ हो। उसके बाद हम बात करते हैं आसना। आसन का जो फिजिकल लेवल पे इफेक्ट है, क्योंकि डीपर लेवल में जो ये हमारी नाड़ियों को प्रभावित करते हैं। नाड़ियां क्या है? हमारी योगियों ने हमारे बॉडी के अंदर ऐसी एनर्जी चैनल्स की बात की है जिसमें अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग नाड़ियों की चर्चा है, जिसमें 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। अगर आप योग के विद्यार्थी इसमें बैठे हैं तो वो जान सकते हैं कि ईड़ा लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पिंगला राइट और सुषुम्ना जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं। और 3.5 लाख नाड़ियों तक की चर्चा की गई है, जिसको हम एनाटॉमी में आर्टरीज कहते हैं, नर्व्स कहते हैं, वेन्स कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। तो दे आर द चैनल्स जिनमें प्राणिक एनर्जी फ्लो, जिनमें प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। फिर इसमें पंच प्राणों की चर्चा की गई, आपको मालूम है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ठीक है, जब क्या होगा, हमारी सपोज करो प्राण है, प्राण का ये जो स्थान बताया गया हमारे योग में थोरैक्स बताया गया। अब आगे अगर आपके प्राण में कमी है, प्राणिक एनर्जी का ब्लॉकेज है, तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाए। यह हमारा ह्यूमन सिस्टम अकॉर्डिंग टू योग वहां मेंशन है, वहां नाड़ियों की चर्चा की गई है। तो नाड़ी क्या है? जिनमें प्राणिक एनर्जी का फ्लो होता है, उन फ्लो को, उनमें अगर वो नाड़ी इम्प्योर हो जाए, उनमें प्राणिक एनर्जी का फ्लो कम हो जाए, तो उसके लिए प्राणायाम की चर्चा की गई कि कैसे नाड़ी शुद्धि, जिसको आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं, तो उन नाड़ियों की शुद्धि के लिए हम प्राणायाम करें। प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा? रिलेशन होगा आपका बॉडी और माइंड में। तो इसके बाद प्राणायाम पाएंगे। तो आसनों में क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। यहाँ पर एनाटॉमी के भी बच्चे बैठे हैं, जहां भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा वहां क्या होगा? आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर है तो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स उस पार्ट में पहुंचेंगे। उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? अच्छा इनहेल कर रहे हैं। वी आर यूजिंग आवर लंग्स कैपेसिटी। जब हम कहते हैं कि योग करने की बात आती है, हम कहते हैं इरेक्ट योर स्पाइन। स्पाइन इरेक्ट है तो ब्रीदिंग लंबी रहेगी और स्लो रहेगी। हम क्या रहेंगे? कूल रहेंगे। जितने हमारे पोस्चर्स योग में है, क्योंकि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब हम ऑर्गन में करेंगे तो क्या होगा? हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। दूसरा, हम प्रेशर मैकेनिज्म की बात करते हैं। एक तो हम रिदम से कर रहे हैं। जब भी कोई चीज रिदम होती है, बिकॉज रिदम इज मोर इनहेरिटेड टू आवर मदर नेचर। रिदम क्या है? हमारे हार्ट का रिदम है, हमारा पल्स रेट का रिदम, हमारा ब्रीथिंग का रिदम है। तो हमारी हर बॉडी में हर एक जितने ऑर्गन्स है उसका अपना रिदम है। तो जो हम योगिक प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक रिदम होता है कि कब आपको कितना स्ट्रेस देना है, कितना आपको इनहेल करना है, कब आपको एक्सहेल करना है, कितना आपको होल्डिंग होनी चाहिए, क्या आपका बॉडी का अलाइनमेंट होना। तो हम जब अलाइनमेंट के संग योग करते हैं, आजकल पूरा जो विश्व है वो अलाइनमेंट योग बेस्ड योग करता है कि आपकी हील टू हील इन वन लाइन होनी चाहिए, स्पाइन का आपका कितना एक्सटेंशन होना चाहिए, न्यूट्रल एक्सटेंशन होना चाहिए, हिप का फ्लेक्शन होना चाहिए, शोल्डर का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, पाम का सुपिनेशन होना चाहिए, प्रोनेशन होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि हम आपके माइंड को आपकी बॉडी के संग इन्वॉल्व कर पाए। जितना बॉडी और माइंड का कोरिलेशन होगा उतना क्या होगा, आपके आसन आपको बेनिफिट देंगे। अगर हम पुराने टाइम में क्या था कि कुछ लोग अभी भी योग कराते हैं जहां इंजरी होती है, तो एंगर में एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने दिया कि आप कैसे अपनी बॉडी को स्टडी और कंफर्ट रख सकते हो। इसके लिए आप पिलो यूज करो, आप बूस्टर्स यूज करो, आप ब्रिक का यूज करो, क्योंकि आपकी बॉडी का पोस्चर ऐसा बन जाए कि कोई मसल्स में ओवर स्ट्रेच ना आए। आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, अब आपने स्पाइन ऐसे कर दी सीधी और प्राणायाम भी कर रहे हो, लेकिन क्या यू आर फीलिंग स्ट्रेच ऑन योर बैक और आप कंफर्ट नहीं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा दिस इज नॉट आसन। आपको कंफर्ट जोन पे जाकर अपने आप को रिलैक्स करना है। आपको फिजिकल लेवल से एक कमांड देनी है ब्रेन को अपने कि कैसे, हाउ टू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। तो ये आपको आसन करने में ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हर एक सिस्टम एक दूसरे से कोरिलेट है, तो हम क्या करते हैं कि जब प्रैक्टिस करते हैं आसनों, तो हम क्या करते हैं अलाइनमेंट के साथ बॉडी को स्ट्रेचअप करते हैं। स्ट्रेचअप करने के बाद क्या करते हैं, लंबा इनहेल करते हैं। इनहेल करेंगे क्या होगा कि अच्छी आपकी ब्रेथ आएगी, हार्ट प्रॉपर ऑक्सीजन ले पाएगा। जितना हमारा आपका ब्लड आया है एल्बो लाइन में वो ज्यादा ऑक्सीनेटेड होगा, रिफ्रेश होगा, क्योंकि आप काम एंड कूल है। आपका जो पूरा ध्यान है, आपका ब्रेन थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आकर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी मेंटल क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है, धीरे धीरे जब आप योग करते चले जाएंगे तो इस लेवल में पहुंच जाएंगे। ये इनिशियल स्टेज की बात नहीं कर रहा, ये जब हम क्या, जब हमारे जीवन में योग रहेगा तब जाकर आप क्या करेंगे, डेफिनेटली जो महर्षि पतंजलि ने बात की गई है कि ततो गंधा नविगाता, कि वी डू आसना इन फिजिकल लेवल बट वी गेट रिजल्ट इन मेंटल लेवल। ऐसा अगर आप योग करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अब क्या है, जो आसन है वो वर्क करते हैं हमारे विस्सीरियो रिसेप्टर्स पे। कैसे, दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक, आइसो मींस क्या होता है, सेम, टोनिक मतलब टेंशन, कि आप सेम टेंशन से स्टार्टिंग में जब कोई भी पोस्चर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि टेंशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वी एनहांस द मसल लेंथ। सेकंड वन आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक में हमने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि टेंशन जो है हमारा वो सेम रहता है, हमको जो कंसंट्रेट करना है वो क्या करना है, एक्टिव जॉइंट्स पार्ट, जो पार्ट उस आसन को करने में इन्वॉल्व है उस पे आपको फोकस करना है। पूरा योग हम यही कहते हैं, क्लोज योर आइज, फील योर स्टमक, क्लोज योर आइज, फील योर लंग्स, या फिर और डीपर लेवल में चले जाते हैं तो हम कहते हैं क्लोज योर आइज, फील द आज्ञा चक्र बिटवीन योर आईब्रो सेंटर। तो धीरे धीरे क्या है, हम इनहांस करते हैं अपनी प्रैक्टिस को, जितना हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि मैं उस बात में नहीं जा रहा हूं, इसमें सबसे पहले आहार की बात आती है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। गीता में भी कहा गया है कि तीन तरह, क्योंकि हम प्रकृति से बने हुए हैं। अगर आपको थोड़ी फिलॉसफी मालूम होगी तो क्या है, सत्व रज और तम, प्रकृति के तीन गुण हैं। तो जब पुरुष कहते हैं चेतन तत्व को, कॉन्शियसनेस, जब उसका प्रकाश प्रकृति में पड़ता है तो सबसे पहले जो तत्व निकलता है उसको कहते हैं महत, बुद्धि। उसके बाद फिर अहंकार निकलता है, और अहंकार से क्या होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक सबसे निकलते हैं कर्मेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां और एक मन। मन क्या है, हमारी सूक्ष्म इंद्रिय। रज दोनों को क्या करता है, गति प्रदान करता है, और जो तम है उससे पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। ये हमारा उत्पत्ति का क्रम है। जब हम आते हैं, जब हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आते हैं, और जब जाते हैं तो फिर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। तो ये सब चीजें हमारे ग्रंथों में वर्णित है, हमको इनको फॉलो करना पड़ेगा एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के। तो आसन करने में क्या है कि हमको फोकस करना पड़ेगा अपने बॉडी पार्ट्स में। ये नहीं कि टीवी चल रहा है, लोग पेपर पढ़ते हैं आजकल और पेपर आया नहीं आया, ये आप अपने को भी धोखा दे रहे हैं और बाहर वाले से भी कहते हैं कि वी नॉट गेट प्रॉपर रिजल्ट आफ्टर डूइंग 1 आवर ऑफ प्राणायाम। वरना अगर आप नियमित प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम हर एक प्रैक्टिस में, डू नॉट गो बिहाइंड द नंबर ऑफ आसन। आजकल ये भी चल रहा है कि लोग 1 घंटे में पता नहीं कितने आसन कर ले, फटाफट सूर्य नमस्कार कर ले कि हम तो इतने आसन करते। आपको थेरेपेटिक रिजल्ट नहीं मिलेगी। आसन तब आपको रिजल्ट देगा जब आप धीरे धीरे उसकी होल्डिंग बढ़ाएंगे, 10 सेकेंड, 15, 20, 30, 1 मिनट, तब आपको डेफिनेटली उस आसन के बारे में जो हमारे हर ग्रंथों में कहा गया है तो आपको उसके रिजल्ट मिलने लगेंगे।
दूसरा अवेयरनेस और कंसंट्रेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं आसना, वर्किंग ऑन प्रोप्री रिसेप्टर्स पे भी हमारा काम करते हैं। ये सब रिसर्च हो चुकी है। तो दूसरा क्वेश्चन होता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक आप जानते हैं, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, मैट्रिक मतलब लेंथ। जब आप आसन को होल्ड करते हैं, यानी सपोज करो आप पश्चिमोत्तानासन कर लो। पश्चिमोत्तानासन एक ऐसा आसन है जिसमें आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं और अपनी स्पाइन को स्ट्रेचअप करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, आपने क्या किया, प्रॉपर इनहेल किया, देन एक्सहेल किया। एक्सहेल करके आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करी, तो आपका स्टमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर में एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। और रिसर्च है सुन है, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, जब आप इसको रिलीज करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, उन ऑर्गन की वर्किंग कैपेसिटी को इनहांस करता है। हर चीज साइंटिफिक। तो हमको क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक पे जाना है, आइसोटोनिक से आइसोमेट्रिक पे जाना है। और आइसोमेट्रिक पे धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ाना और उस आइसोमेट्रिक कंडीशन पे अपने आप को रिलैक्स फील करना है। तब आपके आसन आपको थेरेपेटिक बेनिफिट देंगे। इसमें फिर क्योंकि थोड़ी हम एनाटॉमिकली भी जाते हैं कि दो तरह के पेयर ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में, एक को कहते हैं एंटागोनिस्ट और दूसरे को कहते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, मसल्स क्या रहती है, हमेशा टोन की कंडीशन में रहते हैं। तो हम कहते हैं योग से कि वी आर एनहांसिंग द टोन ऑफ द मसल्स, वी आर बैलेंसिंग द टोन ऑफ द मसल्स। क्यों कि अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, अगर हम हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्वाड्रिसेप्स हमारी आराम से रिलैक्स होगी। आई बात समझ में? अगर एक जगह एक मसल्स क्या है, एगोनिस्ट है, जहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर एक बाइसेप्स एगोनिस्ट है तो ट्राइसेप्स में एक स्ट्रेच आएगा जो ट्राइसेप्स को रिलैक्स करेगा और इसकी वर्किंग कैपेसिटी को इनहांस करेगा। तो ऐसे अगर हम धीरे धीरे आसनों की बात की, वैसी प्राणायाम है। तो प्राणायाम क्या है, प्राणायाम इज द ब्रिज बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड। हमारे हर ग्रंथों में कहा गया है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगृत विच्छेदः प्राणायाम। ये प्राणायाम क्या है कि आज हम जो ब्रीदिंग करते हैं, तीन तरह की ब्रीदिंग हम लोग कहते हैं। एक तो थोरैक्स करते हैं ब्रीदिंग, एक डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम वाला पार्ट नीचे जाता है जिसको कुछ लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। एंगर उसको अपोज करते हैं, एंगर कहते हैं कि जो ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग कुछ नहीं होती, उसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। और तीसरी क्लैविकुलर ब्रीदिंग। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ब्रीदिंग करना आना चाहिए। जैसे कपालभाति है, कपालभाति जो हमारे उसमें षटकर्म में आता है, कई लोग प्राणायाम कहते हैं पर हमारे जो हट के ग्रंथ हैं उनमें उसको षटकर्म लाते हैं। प्लीजिंग पॉइंट, कपाल मतलब होता है ये फ्रंटल लोब और भाती मतलब होता है शाइन। जो इस प्रैक्टिस को करेगा उसका जो चेहरा होगा वो ओजस्वी होगा। इसमें हमारे हठ योग में कहा भी गया है कि अगर आप फिट हैं तो आपका ओरा आपका बताना चाहिए कि आप फिट हैं। तो कपालभाति करने वाले का जो होगा, ये जो फ्रंटल लोब होगा वो शाइनिंग होगा, उसके क्या होगा, वहां से चमक आएगी। तो कपालभाति में हम क्या करते हैं, डायफ्राम को यूज करते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्या है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है एब्डोमेन, लेकिन कितना, जितना आप इजीली कर पाए। कई लोग क्या करते हैं, करते रहते उसमें प्रिकॉशंस भी चाहिए कि अगर आप एब्डोमेन पेन है, वीकनेस है, आपको फीवर है, तो उसको स्किप करें। आप रात का खाना हल्का खाएं। उसके बाद आप आते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग में, जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं। तो ये क्या है, ब्रीदिंग पैटर्न, ड्वेल नाड़ी मॉडल। अगर साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं तो पता होगा कि ड्वेल नाड़ी मॉडल क्या है कि 90 मिनट आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल डोमिनेंट रहती है और फिर 90 मिनट लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और हमारे योग में आता है कि हम दोनों नॉस्ट्रिल को एक साथ चला सकते हैं। कई एक आसन है, जैसे सिद्धासन है, उसमें अगर आप बैठ जाए तो दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ चलेंगे। और वो क्या है, ब्रेन की सबसे अच्छी आपकी स्टेज है जहां आप काम और कूल फील करते हैं। तो क्या है, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन है, इन सब हार्मोन्स का सीक्रेशन नेचुरली होने लग जाता है, हैप्पी हार्मोन्स का, जब आप योग करते हैं। तो क्या है, उसमें फर्स्ट में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं, इनहेल लेफ्ट से कराते हैं, वो भी रेशियो से। ये नहीं करते रहे से 8 करा, मेंटल काउंटिंग कराते हैं, क्योंकि ब्रेन को आपको इन्वॉल्व करना है बॉडी के साथ। तो जब ब्रेन और बॉडी इन्वॉल्व होगा तो पहला रेशियो कराते हैं 1:1 हमारे योग में कहा। फिर 10 तक इनहेल करना है, 10 तक एक्सहेल करना है, फिर 10 तक इनहेल, 10 तक एक्सहेल। तो ये क्या, पहला रेशियो। उसके बाद क्या करते हैं, फिर सेकंड रेशियो में हम कराते हैं कि रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ। अब ये थोड़े फिटनेस वालों के लिए हो जाता है कि जो हेल्दी हैं वो कहते हैं उसको बंद लगाओ। बंद लगाने से क्या होता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, जो हम प्राणिक एनर्जी की बात करते हैं, उस एनर्जी को एक फ्लो प्रदान करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को और बढ़ाने के, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा।
अपने चक्रों को जागरण के लिए, अपनी नाड़ियों की शुद्धि के लिए क्या कराते हैं, ये थ्रॉट में एक लॉक लगाते हैं, इसको कहते हैं जालंधर लॉक। तो आप लेफ्ट में इनहेल करते हैं, फिर ये लॉक लगाते हैं चीन यहाँ, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड, 10 तक काउंट करो, मेंटल काउंट, 10 तक इनहेल, 10 तक आपको लॉक लगाना है। फिर अगर आपने इनहेल किया है तो एब्डोमेन उसी पोजीशन में होना चाहिए। दो तरह का कुंभक लगाते हैं, एक तो आप ब्रेथ को बाहर रोकते हैं, एक ब्रेथ को अंदर रोकते हैं। क्यों? तो स्टिमुलेट योर थायराइड। जब आप ये लॉक लगाएंगे तो क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा थायराइड और पैराथायराइड। उसके बाद एब्डोमेन में भी हम लॉक लगाते हैं, वहां से क्या होगा, आपका जो पेनक्रियाज है, लीवर है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और नीचे से लगाते हैं पेनियल ग्लैंड में, मूलबंध, एनल वाले पार्ट को खींचते हैं, तीनों बंद लगते हैं, एक सर्किट बनता है। तो हमारे योग में कहा जाता है कि जो आपकी जो प्राणिक एनर्जी है उसके फ्लो को बैलेंस करता है। तो ऐसे धीरे 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 करके आप क्या करते हैं, डेफिनेटली अपनी जो प्राणिक एनर्जी है उसको इनहांस करते हैं। तो मेरा इस वर्कशॉप में एक ही उद्देश्य है कि योग सिर्फ लेक्चर का विषय नहीं है, इसको आपको इम्प्लीमेंशन करना पड़ेगा। जब आप इम्प्लीमेंशन करेंगे तो डिजीज बहुत छोटा पार्ट है जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया। मैंने आपको अभी रेफरेंस दिया था श्वेतसतर उपनिषद का, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, जरा कहते हैं बुढ़ापे, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि में शरीर। अगर आप योग की अग्नि में अपने शरीर को जलाते हैं तो आपको डेफिनेटली क्या है, आपको डिजीज आएगी। डिजीज सिम्टम्स आते हैं, आपको बुखार आ रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, इट मींस समथिंग इज रॉन्ग। आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन देती है कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन आप जब उसको क्या करते हैं, इग्नोर करे चले जाते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी। तो जहां हम योग और आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम आयुर्वेद में दिनचर्या की बात की गई है, आपके आहार की बात की गई है, कैसा आपका आहार होना चाहिए, हाउ टू कंट्रोल योर वात पित्त एंड कफ, इसकी बात की गई है। तो इन सब चीजों को वर्कशॉप तक ही सीमित ना करें, एक नियमित आज ही से संकल्प। स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य बड़ा अच्छा है कठोपनिषद, उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरान होता, उठो जागो रुको मत जब तक देह तक ना पहुंचो। तो हमको आज ही से एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे संकल्पित होना है। ये जो वर्कशॉप है, ये सेमिनार्स हैं, ये सिर्फ इसलिए हम एक अपने से वादा करें कि हम अपने शरीर के संग, कहा गया हमारे ऋषियों ने कहा है कि शरीर को भगवान का मंदिर समझ के इसकी सेवा करें। तो जब इसको भगवान का मंदिर समझेंगे तो इसको कैसा आहार देना है, कैसी आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, थोड़ा इस पर विचार करेंगे तो डेफिनेटली ये जो संगोष्ठी है, जो वर्कशॉप है, ये निश्चित ही एक अच्छे परिणाम की तरफ जाएगी। धन्यवाद। For giving us an incredible knowledge of yoga and how to practice asana correctly and the different aspects of asana and the relevance and importance of yoga and asana in today's era. Now I request our reporter Dr. Shriman sir to please come and do the briefing of the topic. First of all, I welcome everyone, participants, chairperson or keynote speaker for this beautiful session, that is the role of Ayurveda and yoga in the management of pandemic. Certainly, we really started with what should be the role of, according to sir's topic, that is yoga. We really started with the role of asana and pranayama in maintaining the health and the preventive aspect in each and everyone's life. सर ने यहाँ तक बताया कि the importance of asana and how to practice for the health. तो practice जो है वो बहुत important role play करता है, how to practice the asana and pranayama। उसके बाद सर ने थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जिक्र किया कि योगिक साइंस जो है वो कहाँ से शुरू हुई है, जिसमें ऋषि मुनियों ने किस तरह से योगिक प्रैक्टिस करते हुए आए हैं और वो किस तरह से हमें आगे फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कहते हैं। इवन सर ने थोड़ा सा जिक्र हठ योग के बारे में किया, जिसमें हाउ टू प्लान फॉर द योगा। ठीक है, सर ने इवन जैसे आयुर्वेदा में
पंचकर्मा और षटकर्म की बात करते हैं, जो चिकित्सा की बात होती है, वैसे ही योगा में जो षटकर्म है प्रैक्टिस करते हैं फॉर द शोधन ऑफ नाडीज, वो सर ने इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ आसना फॉर द बेसिक प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड हाउ टू स्टेडीली प्रैक्टिस द योगासन के बारे में सर ने बहुत अच्छे से जिक्र किया। उसके अलावा यहाँ तक एम्फेसिस किया कि हाउ टू प्लान एंड प्रैक्टिस द आसना। सर ने यहाँ तक इम्पोर्टेंस जताई कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटिंग द डिसीज के लिए योगिक साइंस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनटू द एवरीवन्स लाइफ। उसमें इवन सर ने यहाँ तक जिक्र किया कि प्रैक्टिस में एक्टिवनेस और अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है व्हाइल प्रैक्टिसिंग द योगा एंड आसना। नॉट ओनली दैट, even sir has explained very beautifully or elaborately, that is importance of postures with breathing to maintain the correlation between body and mind. And not only that, while practicing the asanas, the breathing plays a very important role to practice the asana also for the healthier life. Not only that, even sir has even emphasized the silent features of healthy इंडिविजुअल्स के बारे में भी स्लाइड्स सर ने शेयर किया कि किस तरह से साइलेंट फीचर्स होते हैं जो प्रैक्टिस द आसना एंड प्राणायाम। इवन सर एक्सप्लेन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नाड़ी एंड द प्राणायाम फॉर द नाड़ी शुद्धि। देन सर ने यहाँ तक व्हाइल प्रैक्टिसिंग द आयुर्वेदा एंड योगा एंड आसना या प्राणायाम, सर हैज एम्फसाइज्ड मोर इलैबोरेटली, दैट इज द रिदम इनटू द प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड आसना। And even sir elaborately mentioned about the correlation between mind and the body and its scientific effect into the everyone's life while practicing the asana. Not only that, even sir has described about this raja, tama and sattva कि कितना जरूरी है और उनका scientific approach किस तरह से होनी चाहिए and how it plays the important role in each of the body and the mind की correlation में। Not only that, even sir has explained about the importance of various asana by showing the images also, which really impact over the body and mind. Not only that, sir has explained the importance of various breathing techniques and its benefits into the healthy life for the healthy life. And even sir explained that how the bandha plays a very important role while practicing the Ayurveda and its benefits over body and mind. Even sir has explored and suggested that the particular practice of Ayurveda and yoga has to be extended for the even not only it should be restricted to the seminar hall, it should be even extended to the society and to the world according to the importance into the each and everyone's individual. So these were the things where sir emphasized more and really suggested very important topics, how to practice asana and the pranayama to prevent and treat diseases. I am very much thankful for the sir for explaining the beautiful session and topic, and finally extend my welcome to all the participants present in the seminar hall, students, my colleague faculties. Thank you, sir. Thank you so much. Very much, sir. Now I will request our chairperson to felicitate sir with the shawl and the memento. After lunch, so you all are requested to please come here at 1:45 so that we do not extend the time of the sessions, please. Okay.